Hello everyone. So myself Dr. Durlabh Sarkar, founder and director of Gurukul Group of Education Wing. So summer vacation is going on. So we have some updates regarding campus, especially for girls hostel and boys hostel. So we have done some work. So let's see the updates. So we have some modification inside the reception room. This scenery gave us positive vibes, and here we have some success memories. You can see Devashish Shaurya, class 10 2024 topper, who received 99.2%, and these two class 12 toppers and other success stories. So here we have result of 2025. So as you know that above 90% we have 10 students, but some student was not satisfied with marks of English and science. So recheck was given. So finally we have received result after recheck. So almost all students there is a change, there is a positive change in marks. So now I think above 90% there will be 15 students. Especially in case of Dharmishta, the earlier marks was 91.4. Now the new marks is 96 point something. And almost all students like Kushinath, Yuvraj, Bhardwaj, Jumandeep, Vipasha also. So changes are there. So after modify, we'll display the new marks. And in class 12 also lots of students got this time very good marks. So this is change inside the reception room. So as earlier video I have told, these other two rooms are there for administrative works, and this is main administrative office room where mainly admission and account section are operates from this room, and this principal's room as it is as shown in earlier videos. In this academic building, this is old academic building, we have some modification inside the corridor and bathrooms. As in CBSE affiliated school, we need some facilities for CWSN student. So we have some modification for CWSN student. So this part is for primary section. So in 4 months ago, this drawing was drawn. So this give a positive vibes because children like joyful learning, and this corridor tiles is modified and completely green campus. So this is one positive side of this place. So this is ramp newly constructed for CWSN student, and I think in earlier videos also I have shown modified water system and this toilets part also modified. So this is first floor in old academic building. So this part has been modified. So this is actually for CWSN student. So this part has been modified, now looking so nice. And in first floor we have chemistry lab also. So the room is closed because school is closed. So this chemistry lab, we have lots of equipments, lots of instrument for the lab. And in new education policy also, government is giving, or education board is giving focus on experiential learning. So we are also giving importance in laboratory part in this new education policy, mainly emphasize on doing and learning. Doing learning, which is called experiential learning, which give practical knowledge and which will improve skill of the student.
So here we have an coding lab, which is, we can say, computer lab. Lots of computers are there. And this is second floor. So we have lots of classroom also there. Now we are going to third floor, also called last floor of new old academic building. So here in third floor, we have physics lab, having a wide area. So this is library. So the area of library almost 1200 square feet. And here we have 3 classroom, big classroom having digital infrastructure. So this is top floor or third floor of old academic building. So this is almost completed. Only in corridor, within short time, we are going to put tiles. And staircase also, we will put some tiles. So इवनिंग टाइम थोड़ा सा, क्योंकि दिन टाइम में बहुत गर्मी होता है, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ब्यूटीफुल कैंपस, ग्रीनरी, की रेनी सीजन है, ट्रीज आर ग्रोइंग, so very beautiful campus, and school buses are inside the campus because there is no schools, there is no classes. So and this is our new academic building. So यहाँ पे एक ही फ्लोर है अभी, लेकिन shortly now we will start construction because अभी स्टूडेंट ग्रेजुअली और बढ़ रहा है, तो हम लोग और क्लासरूम चाहिए होगा, तो ऊपर हम लोग बना देंगे, अभी स्टार्ट कर देंगे, अभी स्लोली स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो बिल्डिंग है काफी स्पेशियस है. यहाँ पे मेनली क्लास 8 से लेके 12 तक है अभी फिलहाल, ठीक है, क्लास 8 to class 12. And this is my office, director office. There are another office there because this is new. This is vice principal office and one teacher common room are there. ऊपर हम लोग बन जाएगा तो और भी हम लोग कुछ प्लानिंग है, जैसे मिनी मीटिंग रूम, वर्कशॉप रूम हम लोग शॉर्टली बनाएंगे. मेरा इतना पता भी नहीं था कि इतना जल्दी हम लोग को इतना ग्रो होगा. लास्ट 2 years का रिजल्ट की वजह से बहुत जल्दी फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गया. अभी हम लोग बहुत जल्दी बनाना पड़ रहा है. एंड मेनली ये वीडियो का मेन पर्पस से हॉस्टल का हम लोग काफी मॉडिफाई किया, काफी रिनोवेट किया, क्योंकि जब स्कूल 2017 में खुला तो कोई प्लानिंग नहीं था कितना सक्सेस होगा, तो जल्दी सब कुछ हो गया. बीच में कोविड हो गया, तो कुछ काम हरी भरी में हुआ जैसे किया था, लेकिन अभी काफी हम लोग मॉडिफाई कर दिया. काफी हॉस्टल का में भी हम लोग काफी काम किया. अभी जो समर वेकेशन था उसको मेनली दिखाना है. सो लेट्स सी. So this is our girls hostel, 3 stories building. Earlier only we had 2 floors, now 1 new floor has been added. So this floor we have developed so nicely. You can see we have false ceiling also. So room are very spacious, corridor is so wide because space is needed. So when I was in engineering college, our hostel was like this, and you can see this part so beautiful. So this part is so beautiful, so nice view. And here you can see in bathroom also, so nice tiles we have developed, and the bathroom also so nice. And this basin, and we will put here mirror also. And this part was earlier not there. ये part पहले नहीं था, ये newly developed हुआ है. और भी थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि अभी जस्ट बना ही है, बहुत अच्छा साफ सुथरा नहीं हुआ है, और थोड़ा हम लोग क्लीन हो जाएगा. और इससे नीचे फ्लोर इतना ज्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, लेकिन तब भी हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं. ये पार्ट पहले इतना अच्छा नहीं था. अभी काम चल रहा है, अभी ये पार्ट भी काम चल रहा है, और 2-3 दिन लग जाएगा. सो यहाँ पे भी हम लोग कलर वगैरह करा दिया, बाथरूम वगैरह में भी टाइल्स लगा दिया अभी, लेकिन ये पार्ट पे भी हम लोग टाइल्स वगैरह लग जाएगा, काम चल रहा है. सो इट विल टेक अनदर 2 to 3 days. सो स्कूल खुलने से पहले ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. ये पार्ट भी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऑल पूरा पॉजिटिव वाइब्स, तो बच्चा पूरा शांति से पढ़ सकता है. तो मेरा इस ड्रीम्स था कि थोड़ा मॉडिफाई कर दे. ये पार्ट भी पहले इतना अच्छा नहीं था, कलर वगैरह करा दिया, सो इट्स लुक ब्यूटीफुल. So as shown in earlier videos also, this is the part which is so peaceful, greenery, and this is a 3 stories building. That is the girls hostel, and in the back side of the girls hostel we have a 3 stories building.
In above, approximately we have 28 rooms, I think, above single rooms, and that is for teachers quarter. ऊपर में टीचर्स रहते हैं, मेल टीचर, और जो फीमेल टीचर्स है वो गर्ल्स हॉस्टल के नीचे में कुछ क्वार्टर का सेक्शन है, वहां पे रहते हैं, एंड ये मेल टीचर के लिए। और ये जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का ऊपर फ्लोर का एंट्री ये इस साइड से है, ये साइड, और ग्राउंड फ्लोर का एंट्री ये साइड से है, फ्रॉम दिस साइड। सो ये मेरा रेसिडेंस है, यानी स्कूल का डायरेक्टर का रेसिडेंस है। तो स्कूल कैंपस में ही मेरा रेसिडेंस है, तो मैं और मेरा वाइफ प्रिंसिपल हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि हम लोग बहुत अच्छा मेंटर कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, सब चीज डायरेक्टली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत कम हो जाता है। सो प्रॉपर गाइड मिलता है, सबसे हम लोग आंखों के सामने वी कैन सी, वी कैन केयर। एंड ये हम लोग एक मंदिर है, टेम्पल है, व्हिच गिव है पॉजिटिव वाइब्स। तो कोई भी अच्छा काम का शुरुआत हम लोग प्रेयर से होता है, तो हम लोग सुबह नहा धोआ के मेडिटेशन करके प्रे करके हम लोग का दिन स्टार्ट करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट न्यू मॉडिफिकेशन। अब पहला वीडियो में ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ऊपर में कंप्लीट हो गया। ऊपर में भी जो रूम वगैरह है बहुत ब्यूटीफुल रूम है, स्टाफ के लिए जो रूम है बहुत एकदम, बाथरूम वगैरह में टाइल्स लगा हुआ है, फ्लोर कॉरिडोर वगैरह में पूरा टाइल्स लगा हुआ है। सो क्योंकि रहने का जगह अगर अच्छा नहीं होता है तो मन नहीं लगता है, तो हम सोचे कि नहीं, टीचर्स का भी मन लगे, तो रूम वगैरह हम लोग बहुत अच्छे से बनाए। एंड ये हम लोग स्विमिंग पूल एरिया है, पानी बहुत दिन से कलेक्ट हुआ है तो गंदा पानी, अभी पानी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के बारे में बोल रहा है। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिलता है घर में। हम लोग के बचपन में तो हम लोग नदी वगैरह में नहाया, स्विमिंग किया, बहुत ज्यादा हम लोग पूरा एक्सपोजर मिला था। तो इसलिए हम कभी कभी हॉस्टल के लिए तो वो लोग संडे व सेकंड सैटरडे जब भी बंद मिलते हैं उन लोग को 2-3 घंटा स्विमिंग करने मिलता है। और स्कूल का भी जो बच्चा है हम लोग बीच बीच में स्विमिंग कर एज पर कन्वीनियंस हम लोग देते हैं। अभी समर वेकेशन स्कूल खुलने के बाद हम लोग देंगे, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, साफ सुथरा चल रहा है। वो जो कच्चा घर है वो भी टूट जाएगा, फिर इधर भी एंट्री बन जाएगा, तो मॉडिफाई होगा, धीरे धीरे हम लोग भी कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी मॉडिफिकेशन इनसाइड द बॉयज हॉस्टल। दिस इज बैक साइड एंट्री ऑफ बॉयज हॉस्टल। हम लोग वहां से भी एंट्री कर सकते हैं, फील्ड से भी। ये भी थोड़ा अभी इस बार हम लोग पूरा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया बनाते वक्त जैसे जैसे बनाया था, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है, स्टूडेंट बढ़ रहा है, तो हम लोग मॉडिफाई। एक कैंटीन है और ये पूरा ग्रीनरी है, पूरा ट्रीज है, पूरा पीसफुल। बच्चे का कोई डिस्ट्रक्शन का चांसेस ही नहीं है, बहुत पीसफुल ये लोग पढ़ सकते हैं, पूरा शांति है। हो जाएगा, काम चल रहा है, प्लास्टर वगैरह हो गया, अभी कलर होगा और 1 वीक जैसे लगेगा इसको खत्म होने में। तो यू कैन सी दैट इज आवर old academic building, or this one new academic building, 8-room girls hostel, and near the girls hostel the 3 small building that is for teachers quarter, and we have long space between boys hostel and girls hostel. So in boys hostel also we have 3 stories building, RCC building, and this floor has been constructed newly. So earlier which part was constructed, Harivali it was constructed. So now this ये जो floor है बहुत time लेकर हम construct किया है. So room are so beautiful, you can see, and room are also small that जब स्टूडेंट एक साथ बहुत सारा रहता है तो डिस्टर्ब क्रिएट होता है, तो ये रूम वगैरह जो कंस्ट्रक्ट किया, एक रूम में 2 व 3 स्टूडेंट ही हम रह सकते हैं। फॉल सीलिंग वगैरह लगाया, कॉरिडोर भी बहुत ब्यूटीफुल है। और ये पहले एयर नहीं आ सकता, नीचे फ्लोर में यहाँ पे ओपन स्पेस नहीं था, लेकिन अभी पूरा ओपन स्पेस है, पूरा ग्रीनरी, ब्यूटीफुल प्लेसेस। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 रूम है, 15 नहीं 16 रूम है। ये एकदम न्यूली कंस्ट्रक्ट है, अभी न्यू एडमिशन होगा तो यहाँ पे रूम मिलेगा। स्लोली यहाँ पे नीचे भी हम लोग टाइल्स वगैरह लगा देंगे। एंड वो साइड में पूरा कॉरिडोर्स है, कॉरिडोर्स। और ये जो न्यूली ये जो फ्लोर कंस्ट्रक्ट हुआ, ये पार्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बाथरूम वगैरह टाइल्स वगैरह लगा दिया, बेसिन वगैरह भी है। पुराना जो रूम फ्लोर था उसमें इसमें बेसिन नहीं था और टाइल्स नहीं था, टाइल्स वगैरह लगा दिया। और यू कैन सी हियर वी हैव ब्यूटीफुल कॉरिडोर। ये पार्ट थोड़ा काम बाकी है, कलर वगैरह का बाकी है, बट दिस इज
open space, so beautiful. You can see पूरा ग्रीनरी है, बच्चे का पूरा मन लग जाता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए ऐसा जगह ही चाहिए, पूरा शांति वाला जगह चाहिए, इसलिए स्कूल का नाम भी गुरुकुल है। ये हम लोग थर्ड फ्लोर को दिखाया, अभी ये नीचे फर्स्ट फ्लोर है, ये भी पूरा प्लास्टर प्लास्टर होकर पूरा मॉडिफाई हो गया। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर में आपका सेकंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर, एंड यहाँ पे भी ब्यूटीफुल कॉरिडोर। ये थोड़ा कलर वगैरह करना बाकी है, काम चल रहा है। ये अंदर में सब पहले से ही है, यहाँ पे भी हम लोग टेबल वगैरह चेंज करा दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करा दिया, ये मॉडिफाई करा दिया। नीचे का स्टेयर में थोड़ा पटाज वगैरह लगेगा तो अच्छा होगी, बहुत पहले जल्दी में हुआ था, टूट भी गया। एंड दिस इज ग्राउंड फ्लोर, ये पहले से ही है, फर्स्ट फ्लोर भी पहले से ही है। फर्स्ट फ्लोर सॉरी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में पहले से स्टूडेंट रह रहा है, अभी टॉप फ्लोर है, लास्ट फ्लोर न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। So finally, this is our field. So green field, little bit summer session going on. So little bit grass is growing fastly, but so peaceful place. And later on, within 1 year, actually this part ना, ये जो कच्चा घर है, जो कच्चा घर नहीं पक्का ही है लेकिन टेम्पररी है, तो वो हम लोग शुरू में जो फर्स्ट ईयर इसको स्टार्ट किया था तो मिट्टी हम लोग इतना नहीं था, मतलब तो हम लोग जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट किया था तो वो अभी हम लोग स्टोर रूम बना के रखा है, बाहर जो वर्कर लोग काम करते हैं लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो भी हम लोग तोड़ देंगे। उधर हम लोग और भी मिट्टी है, बहुत जमीन है, वो वाल भी टूट जाएगा तो ये फील और भी बढ़ जाएगा, और एंट्री उस साइड से होगा, वहाँ पे एक आपका बड़ा सा स्टेज बनेगा, जैसे स्टेज पर ऑडिटोरियम। तो हम लोग जैसे कोई असेंबली होता है, समर में बारिश होता है तो असेंबली के लिए दिक्कत रहता है, तो हम लोग असेंबली स्टेज अभी तो हम लोगों का ये जो कैंपस है गुरुकुल का मोटामोटी एकेडमिक बिल्डिंग मोटामोटी ओल्ड वाला का पूरा कंप्लीटेड है, बॉयज हॉस्टल पूरा कंप्लीटेड है, बॉयज हॉस्टल पूरा कंप्लीटेड है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल पूरा कंप्लीटेड है, आपका स्टाफ क्वार्टर पूरा कंप्लीटेड है, हम लोग अभी एक्स्ट्रा रूम है, एक्सेस स्विमिंग पूल कंप्लीटेड है। और ये जो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग है, ये जो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग यहाँ पे और 2 स्टोरेज बनेगा, तो ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 10,000 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग है, और 2 फ्लोर बन जाएगा तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई टेंशन नहीं होगा। अभी जैसे लगभग 1200 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 2000 स्टूडेंट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटामोटी हम लोग का और कुछ एक्स्ट्रा रूम भी चाहिए, एक्टिविटी रूम चाहिए, हम लोग और भी एक्स्ट्रा बना लेंगे, अभी है लेकिन और थोड़ा सा हम लोग बनाने का मन है। और ये मैं 2017 में स्टार्ट किया था, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत से मुश्किल से, लेकिन 17-18 में स्पीड लेने के बाद हम लोग कोविड खाया, फिर स्लो हो गया, क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट मैट्रिक का जो बैच है वो कोविड बैच था, मतलब तो क्या होता है कि स्टूडेंट तो घर में था, डाइवर्ट हो गया, मोबाइल एडिक्शन हो गया, जो रिजल्ट आना था वह मेरा गाइडेंस से मिलना था उस टाइम खिली हो गई, तो फर्स्ट बैच का जो रिजल्ट है वह सेकेंड बैच का रिजल्ट है, जितना होना था उतना अप टू मार्क ड्यू टू कोविड, लेकिन तब भी ठीक ही था। लेकिन हम लोग जैसे जिस हिसाब से मेहनत किया था उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी था, लेकिन कोविड जब खत्म हुआ फिर स्पीड लिया 2023 से हम लोगों का अभी कंटिन्यूसली वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट। लास्ट 2 ईयर तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, अभी कमिंग ईयर्स में हम लोग का और भी करने का मन है। तो हम लोग का जो स्कूल से सपोर्ट बहुत सपोर्ट मिला, और सपोर्ट वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड लास्ट मंथ में मेरा फादर का डेथ हुआ, तो 15-20 दिन हम लोग गाँव घर में ही था। उसके बाद आज लगभग 10 दिन जैसे हुआ हम लोग आया, आने के बाद भी हम लोग थोड़ा सा क्या हो गया, अलग दुनिया से जैसे आया तो थोड़ा स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम लोग विजिट करने का प्लानिंग था लेकिन कर नहीं पाया होम विजिट, लेकिन हम लोग तब भी सोच रहे आफ्टर 2-3 डेज हम लोग होम विजिट करेंगे। तो अभी जैसे स्कूल खुल जाएगा हम लोग भी और जम के लगेंगे। और वीडियो में भी मैंने बताया पहले इन लास्ट वीडियोस, पापा का जब डेथ हुआ बहुत सारा आदमी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंकफुल। तो हम लोग को भी एनर्जी मिला है कि और अच्छा काम हम लोग करना है। एंड बच्चे को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हॉस्टेलर है अभी स्टार्ट कर दो पढ़ाई, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद तो फिर हाफ ईयरली का भी टाइम आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो घूमना फिरना तो हो ही गया, अभी हम लोग भी काम शुरू कर दिया, तो अभी पढ़ाई करना है पढ़ाई। और एक बात है कि
कुछ भी हो, अब लाइफ में तो सक्सेस का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नॉलेज गिव ट्रू हैप्पीनेस। और स्टडी एक ऐसा चीज़ है जहाँ से रेस्पेक्ट मिलता है, तो हमें पढ़ना है रेस्पेक्ट के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है। और देखिए जब रेस्पेक्ट मिलना शुरू होता है ना सोसाइटी में, तब एक अलग टाइप का एनर्जी फील होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ को केयर करना है, फूड डाइट ये सब मेंटेन करना है। सबको मालूम है कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, मैं भी कभी कभी खुद भूल जाता कभी कभी। अभी 3 महीने पहले हम आमला जूस खा रहा था, कब सडनली बंद हो गया, भूल गया, फिर कल याद है डायरी खुल के देखा रहा, बहुत दिन से आमला जूस नहीं खा रहे। तो कुछ कुछ चीज़ हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग लेक इधर क्या होता है, खाना पीना कभी एक दिन अच्छा खा गया, फिर कब भूल गया कि अच्छा खाना है। मतलब क्या होता है कि सब चीज़ के लिए क्या होता है, मोटिवेशन जरूरत होता है। कभी कभी हम लोग रुक के देखना होता है कहाँ गलती हो रहा है, तो हर एक दिन रेक्टिफाई का जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो बहुत क्लोजली खुद को मॉनिटर करना है, तो उसे आपसे आगे बढ़ना है। और होपिंग क्लास 10 एंड 12 डूइंग वेल, कि आप लोगों का अभी क्या है कि यही मेन ईयर होता है कि हम लोग का बहुत प्रेशर होता है, और एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट। स्पेशली 10 का तो लास्ट 2 ईयर से बहुत अच्छा कर रहा है, 12 का इस बार कम्प्लीटली अच्छा किया, लेकिन अगले साल जो बैच है वो होपिंग बहुत अच्छा करेगा। मेरा मेडिकल एंट्रेंस का भी रिजल्ट अच्छा है, जेईई मेंस का भी अच्छा है। अंकिता को NIT से मिला था, तो वो IIT में नहीं मिला, बल्कि IIT के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। तेरस का भी तो अच्छा मार्क्स ही मिला है उसको, वो स्टेट रैंक शायद 1055, तो काफ़ी अच्छा रैंक है, क्योंकि मेडिकल के लिए तो 3 साल से आदमी ट्राई करते हैं। तो ये था आप लोगों का मॉडिफिकेशन। सो और थोड़ा सा काम बाकी है अभी, लास्ट 10-12 डेज से थोड़ा अच्छा से, क्योंकि स्कूल जब चला रहता है तो ये सब मॉडिफाइड व रिनोवेट करना बहुत दिक्कत है, कलर वलर करना दिक्कत है, तो हम सोचा ये कर देते हैं। स्टूडेंट लोग जब आएगा आगे देखेगा अपना न्यू कैंपस, दे विल फील गुड। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। जय अखम, जय हिंद।